ختم نبوت کے لیے حق بادشاہ سرکار نے کون کون سے کام کیے، ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا مختصر جائزہ لیجیے۔ ایبٹ آباد میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جمع غفیر نظر آیا۔ ٹیکسلا میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں لاتعداد لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ گیلیکسی مارکیٹ ٹیکسلا کی عظیم کانفرنس میں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ فتح جنگ کی کانفرنس میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ تحصیل کوٹلی ستیا میں شدید بارش کے باوجود تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لوگوں نے بلند کیے۔ منی اسٹیڈیم گجرانوالہ بھی حق بادشاہ سرکار کی آمد پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے محروم نہ رہا۔ گجرات کی سرزمین پر کئی کانفرنسز ان کی زیر صدارت منعقد ہوئی ہیں، جس میں جمع غفیر کی تعداد میں لوگوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ جبی شریف خوشاب کی سرزمین پر ہر سال ان کی زیر صدارت لاکھوں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ میاں چنو خانیوال کی سرزمین پر بھی انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ ملکہ کوہسار مری میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس میں ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ لدی کے غربی شیخ پورہ میں ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ G13 اسلام آباد میں جامع مسجد کے افتتاح کے موقع پر بھی ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ موہاڑی شریف سرائے عالمگیر میں بھی ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ CDA اسلام آباد میں ہر سال تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ہاؤسنگ اسکیم ناروال میں شدید سردی کے باوجود بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت لاکھوں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے نظر آئے۔ چکوال کی سرزمین پر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ پوٹوہار قلعہ مارکی گجر خان بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے جمع غفیر اپنے دلوں کو گرماتا ہوا نظر آیا۔ ایوان اقبال لاہور، جہاں منافقین اور منکرین ختم نبوت نے بہت کوشش کی، مگر وہاں اقبال ہال بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ آرے بازار راولپنڈی میں ننھے حفاظ کرام کی دستار بندی پر بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں یہی نعرے بلند ہوتے رہے۔ 12 ربیع الاول شریف تاجدار ختم نبوت ریلی میں ان گنت اور لاتعداد گاڑیوں میں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت ریلی منعقد ہوئی۔ حق بادشاہ سرکار کے شانہ بشانہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ دائیوال سہاوا میں گھر میں چہلم کے غم کے موقع پر حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں یہی نعرے بلند ہوتے رہے۔ سرائے عالمگیر میں 5 بھائیوں کی شادی کے موقع پر ناچ گانا نہیں بلکہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنا بڑا جمع غفیر دیکھنے میں نہ آیا تھا، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد کی ختم نبوت کانفرنس منکرین ختم نبوت کے سینوں میں شہتیر کی طرح لگتی ہے، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لاکھوں لوگوں نے بلند کیے۔ F11 اسلام آباد کی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے گونجنے والی کانفرنس کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ G10 اسلام آباد کی محفل میں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت جمع غفیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتا رہا۔ سیال کوٹ کا 7 لاکھ کا مجمع تو منکرین ختم نبوت سے برداشت ہی نہیں ہوتا، جہاں لاکھوں لوگوں نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو سپہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت کا خطاب دیا۔ شارجہ متحدہ عرب امارات وہ سرزمین جہاں کوئی بھی محفل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، وہاں بھی ان کی زیر صدارت کانفرنس میں قصیدہ بردہ شریف کی صدائیں بلند ہوئی اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ برمنگم، مانچسٹر، پیٹر برو، لیوٹن، انگلینڈ کے ان تمام شہروں میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ نیا سال دنیا دار عیش و عشرت کی محفلیں سجاتے ہیں، وہاں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے نیا سال انگلینڈ کی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے شروع کرنے کا پیغام دیا۔ دنیا کا دوسرا کنارہ کینیڈا، جہاں تاریخ میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی بات نہیں کی۔ مسز ساگا، انٹیریو، کینیڈا، جہاں تاجدار ختم نبوت
زندہ باد کے وہ نعرے بلند ہوئے جو کہ منافقین اور منکرین ختم نبوت سے برداشت نہ ہوئے۔ یہ وہ صدا ہے جس سے یہود و نصارہ اور ختم نبوت کے منکرین سے رہا نہیں جاتا۔ کینیڈا کی سرزمین پر اور 31 دسمبر کو انگلینڈ کی سرزمین پر جو کانفرنس منعقد ہوئی، اس کے رد عمل میں آج اقرار الحسن کی صورت میں مسلمانوں کو ہیجان کی اس کیفیت میں ڈال رکھا ہے۔ پوری دنیا میں ماہانہ محافل 11ویں شریف، جرمنی، کینیڈا، انگلینڈ، دبئی، اسکاٹ لینڈ، ہر جگہ یا غوث اعظم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ حق بادشاہ سرکار کی کوششوں کا ثمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہالینڈ کے گستاخانہ خاکوں کو بند کروانے میں حق بادشاہ سرکار نے یورپین پارلیمنٹ کو خط لکھا اور ہالینڈ کو اس خط کے باعث اپنا یہ غلیظ کھیل ختم کرنا پڑا۔ اس وقت کی دور حاضر کی پاکستان گورنمنٹ میں ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے ذریعے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ختم نبوت کی قرارداد منظور کروائی۔ وزارت مذہبی امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر حافظ عبد القدوس کے ذریعے نکاح نامے اور تمام سرکاری و نیم سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کے ساتھ خاتم النبیین لازمی قرار دیا گیا جو کہ حق بادشاہ سرکار کی کوششوں کی بدولت ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سی کاوشیں ہیں جو کہ ہم وقت کی کمی کے باعث آپ کے سامنے لا نہیں سکتے۔ آپ یہ تمام معلومات آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور حق بادشاہ سرکار کے خلاف خرافات، انتشار اور فساد پیدا کرنے والوں کی بھی حرکتوں کو دیکھ لیں۔ جادو اور جنات وغیرہ تو ولی کی ٹھوکر کی مار ہوتے ہیں۔ ہم جارو میں ہیں، ہم محبت دوارو میں ہیں، ہم حضور کے غلاموں میں شامل ہیں۔ 1 2 4 5 یا 10 یا لاکھ نہیں، کروڑوں لوگ دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی ایک شیطان منہ کھولے گا تو پوری دنیا میں ہم تاجدار ختم نبوت کے علم کو بلند کر دیں گے۔ یہودیوں کو معلوم ہے کہ اسلام کو فرقوں میں تقسیم کر کے اسلام کو مختلف طریقے سے کمزور کیا جائے، لیکن یہودیوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں لچک دکھا ہی دیتا ہے۔ لیکن مزاروں اور آستانوں سے جڑے ہوئے لوگ آج بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لچک نہیں دکھاتے۔ دراصل آستانوں اور درباروں پر لوگ شفا، مشکلات کے حل اور تکالیف کو دور کرنے آتے ہیں۔ درباروں اور آستانوں پر یہ بھروسہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی بدولت بحال ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری دنیا میں مل کر تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرنی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں میری دوستی اور دشمنی کا معیار فقط تاجدار مدینہ کی محبت کا معیار ہے۔ ہم نے تو پوری دنیا میں نہ تو کسی سے خوف کیا ہے نہ کوئی غم کیا ہے، کیونکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، انہیں دنیا کیا بروز حشر بھی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور 2017 میں جب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ ان کے دم کی بدولت لوگ جب موذی امراض سے شفا پانے لگے تو یہودیوں کی فیکٹریاں، دوائیں بنانے والی کمپنیز، میڈیکل اکوپمنٹ کے مہنگے معیار کی مانگ کم ہوئی، انہیں نقصان ہوا۔ اور دوسری جانب حق بادشاہ سرکار نے جب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے اور اسلام کی طرف نئی نسل کو واپس لانے کے پیغامات اور تعلیمات دی تو مسلمان شراب و شباب کی محفلیں، غیر اسلامی رسومات، زنا جیسی بے حیائی، ویلنٹائن ڈے اور ان جیسی خرافات سے دور ہونے لگے۔ تب بھی یہودیوں کے مشن کو نقصان پہنچا کیونکہ فحاشی، عیاشی، بے حیائی اور نشے کے اڈے زیادہ تر یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اپنے آپ کے لیے بہتری کا پیغام لاتے ہو ان گانے بجانے سے پرہیز کرو، ان دنیا داروں سے پرہیز کرو، اپنی آنکھوں کو گنبد خضرا پہ لگا لو، یہ دنیا کی سکرینوں پہ نہ لگاؤ بلکہ گنبد خضرا پہ لگاؤ۔ جب اس گنبد خضرا پہ لگاؤ گے تو قبر میں تو کم از کم ہمیں سرکار یہ پہچان لیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ دیکھیں پہلا سوال ہوگا، دوسرا ہوگا اور تیسرا جو پاس کرے گا وہی جنت جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ تیسرا سوال کیا ہوگا، مصطفیٰ کریم لحد میں تشریف لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں دیکھ کے چہرہ دوسری طرف موڑے یہ میرا امتی نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب مصطفیٰ کریم قبر میں آئیں گے تو ہم کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھو، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔
यहूदियों के मुमालिक में देखिए कि कितना अमन है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में अजीब अफरा तफरी मचाई हुई है और इस अफरा तफरी में टीवी चैनल्स रेटिंग और व्यूअरशिप के लिए पूरा किरदार अदा करते हैं। लिहाजा इकरारुल हसन सहाफी नहीं बल्कि लिफाफी हैं, जिन्होंने मारूफ रूहानी शख्सियत की किरदार कशी और खत्म नबूवत के नारे को मनफी अंदाज में पेश करने की भारी रकम बैरून मुल्क के यहूदियों और मुनकरीन खत्म नबूवत की जानिब से ली है। इसीलिए ये मुसलसल इसी साजिश में लगे हुए हैं। हक बादशाह सरकार की मुखालफत से पहले इनकी वीडियोस को देखिए तो व्यूज हजारों में और चंद लाखों में, लेकिन जब हक बादशाह सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया तो इनकी वीडियोस कहां तक पहुंची, ये तमाम तफसीलात आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मामूल के मुताबिक हक बादशाह सरकार लोगों से लाइन में मुलाकात करते हैं तो जायरीन फोन पर अपने घर बैठे लोगों को भी दम करवाते हैं। बहस और तकरार के दौरान इकरारुल हसन ने अपने घर वालों को भी दम करवाया, जिस पर हक बादशाह सरकार ने इंतहाई मोहब्बत और आजिजी का मुजाहिरा किया। आप देखिए कि हक बादशाह सरकार ने अपनी कोई जाती रंजिश नहीं दिखाई, बल्कि अपने काम को उस वक्त भी दुश्मन के सामने खुश उसलूबी से सरअंजाम दिया। इकरारुल हसन यहूदियों के शैतानी दिमाग और दज्जाली फितने की तरफ से होने वाली ऐसी साजिश की तरफ गामजन है, जो कि यहूदी जानते हैं कि मुसलमानों के फिरकों में आपस में लाख इख्तिलाफात हों, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पर तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सिवाय एक के जो मुनाफिकीन और मुनकरीन खत्म नबूवत हैं, जिनके फितने का नाम काफ से शुरू होता है। जो टाइम अपना दुनियादारी गानों और बजानों में लगा देते हो मेरे मुरीदों, वही टाइम अगर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह ने गुजार दो तो कितनी खूबसूरत बात है। अगर वो मुस्तफा करीम पे दरूद भेज दो तो कितनी बड़ी बात है। आप खुद सोचिए कि अकीदा खत्म नबूवत की पासबानी वो करेगा जिसने आज की नौजवान नस्ल को इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्म नबूवत की तालीम दी, वालिदैन का अदब सिखाया, या वो करेगा जो अपनी औलाद को लिबरल मुसलमान बनाना चाहता है और कैमरे छीनने और झूठा तशद्दुद दिखाकर लोगों की झूठी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करे और मासूम कार्ड इस्तेमाल करे, खत्म नबूवत के मुनकिरों से पैसे खाए। फैसला आप खुद कीजिए। कम से कम इन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम पर कीचड़ उछालने से पहले अपने नाना हुजूर का ही ख्याल कर लेना चाहिए था। यकीनन इन्हें किसी भी किस्म का कोई इल्म नहीं, ये सिर्फ ट्रिक के पीछे पड़े थे, लेकिन दरअसल इकरारुल हसन की अपनी ट्रिक इनके अपने गले पड़ गई। अगर इन्होंने मुझे चुप चुप कहा, ये भी मरीज को चुप चुप करे, मैं भी करूंगा, देखा ठीक ही से होता है। हम अपनी औलाद को मुसलमान बनाना चाहते हैं, लेकिन इकरारुल हसन अपनी औलाद और नस्ल और तमाम मुसलमानों के बारे में वो ख्यालात रखते हैं जो यहूदियों के मिशंस हैं। इनके अल्फाज के मुताबिक ये अपनी नस्ल को इस्लाम तो क्या हुब्बुल वतनी भी नहीं सिखा सकते। तो यकीनन ऐसी सोच रखने वाला ना तो इस्लाम का वफादार हो सकता है, ना ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का, और ना ही इस मुल्क पाकिस्तान का। इसलिए पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा में इन्होंने एक इंतशार फैलाया हुआ है और अब ये पाकिस्तान में खत्म नबूवत के नाम पर मजहब कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुनकरीन खत्म नबूवत का मिशन ही पाकिस्तान को तोड़ना है और इसमें इकरारुल हसन ने बखूबी अपना किरदार अदा किया है, जो हमने आपके सामने बेनकाब कर दिया है। इकरारुल हसन की बुज़दिली देखिए कि जब इन्हें हक बादशाह सरकार ने कहा कि यहाँ से बाहर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तब इकरार साहब बेकरार हो गए कि हजरत आप हमें छोड़ कर आएंगे। आपको ये पुलिस की स्कूटी सीधे मुझे आपका काम है, मैं छोड़ के गाड़ी तक आप आपको हम छोड़ कर आएंगे। लोगों के सामने झूठे दावे करते हैं कि यह जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन हक खतीब बादशाह के अल्फाज सुनकर इनकी हवा निकल गई। लेकिन फिर भी हक बादशाह सरकार ने इन्हें बाहिफाजत पुलिस की गाड़ी में बिठाया, क्योंकि अपनी करतूतों से इकरारुल हसन अच्छी तरह वाकिफ थे। हक बादशाह सरकार अपने वालिद गरामी पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत खल्क और खत्म नबूवत के पैगाम को जारी रखते हुए लोगों को मुसलसल दम करते जा रहे हैं और खत्म नबूवत का पैगाम फैलाते जा रहे हैं। लेकिन झूठे पीर जो अपने वालिद गरामी की खिदमत को जारी रखने के बजाय ऐशो इशरत में पड़े थे, उन्हें यह तकलीफ हुई कि हक बादशाह सरकार ने हकीकी पीर के बारे में लोगों को आगाह कर दिया, जो कि दरअसल दरबारों और आस्थानों की शान है। इसलिए झूठे और 2 नंबर पीरों को अब अपने ऐशो आराम की फिक्र पड़ गई है। लोगों को दरबार आलिया बलावड़ शरीफ और आस्थाना आलिया कलर सैयदा में अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई, तो झूठे पीरों के पास लोगों ने जाना छोड़ दिया। वो आस्थाने आबाद जरूर होते अगर खिदमत खल्क और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जाती, खत्म नबूवत से गद्दारी न की जाती, तो अल्लाह ताला वहाँ भी शिफा के खजाने उतारता जैसे पहले उतारता था। इकरारुल हसन कहते हैं कि ये तब तक लगे रहेंगे जब तक हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार दम करना और खत्म नबूवत का नाम लेना न छोड़ दें। दरअसल मुनाफिकीन, मुनकरीन और दज्जाल के मुंतजिर लोगों को इन्हीं दो कामों से ही तो तकलीफ है। क्यों इकरार साहब आपके पीछे छुपा हुआ एजेंडे की बात क्यों मान लें? लोगों की खिदमत और खत्म नबूवत से पीछे क्यों हट जाएं? हरगिज नहीं। खिदमत खल्क और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पैगाम इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मुनाफिकीन और यहूदियों को यही तकलीफ है कि हक बादशाह सरकार ने अब खत्म नबूवत सेंटर्स का कयाम अमल में लाना शुरू कर दिया है और जगह जगह इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत सेंटर्स भी जरूर कायम होंगे। इकरारुल हसन अब हक खतीब बादशाह सरकार के असासे उछाल रहे हैं। उन गद्दारों के असासे क्यों नहीं उछालते जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के गद्दार हैं। दूसरी जानिब इकरारुल हसन जो जमात बनाना चाहते हैं, दरअसल इस जमात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गद्दारों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इनकी जमात में वही शामिल होगा जो दरअसल छुपा हुआ खत्म नबूवत का मुनकिर होगा या मुनकरीन के फितने का शिकार होगा। नाजरीन, लोगों को बेनकाब करने वाले इकरारुल हसन की साजिशों को आज हमने बेनकाब कर दिया है। इकरारुल हसन सोचिए कि अच्छा भला स्टिंग ऑपरेशंस की आड़ में आपके रोजगार की गाड़ी चल रही थी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को छेड़कर आपने अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर लिए हैं। आप खुद बेनकाब हो गए हैं क्योंकि इकरारुल हसन को मालूम नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हैं और हक बादशाह सरकार ने आपके मामले को अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऑन रिकॉर्ड पेश कर दिया है। याद रखें, अल्लाह ताला की पकड़ से कोई जान नहीं छुड़वाने वाला। हर शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में अपना हिस्सा डालने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि सच्चा रास्ता कौन सा है। दरबार आलिया बलावरा शरीफ और आस्थाना आलिया कलर सैयदा में खिदमत करने वाले खादिमीन दरअसल ये जानते हैं कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार अपनी जात के लिए किसी से कुछ भी नहीं लेते, तो जो कुछ भी बनाया है मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। यहाँ दम, दुआ और खत्म नबूवत की सदाओं में सच्चाई है, इसलिए यहाँ हर खादिम दिल से मोहब्बत के साथ अकीदा खत्म नबूवत का सिपाही बनकर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करता नजर आता है। यहाँ से शिफा याब होने के बाद खादिमीन अपने अपने अंदाज में खिदमत करते हैं, क्योंकि किसी की दुआ कभी भी लग सकती है। इकरारुल हसन दरअसल जो मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं वो इस्लाम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और औलिया कराम के दरबारों और हमारी नई नस्ल के खिलाफ है, जो कि यहूदियों और खत्म नबूवत के मुनकरों के उस फितने का नाम है जिस फितने का नाम काफ से शुरू होता है। मुनकरीन खत्म नबूवत ने एक और नया तरीका निकाला है कि ये कहते हैं कि खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। इस पर भी सुन लीजिए कि दरअसल ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे मुंह पर तो नबी मानते हैं, मिलाद की महफिलें भी सजाते हैं, लेकिन दरअसल ये कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत अंबिया कराम की खत्म नबूवत है, जबकि अपने झूठे कज़्ज़ाब नबी को ये उम्मतियों में से नबी बनाकर पेश करते हैं और उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम देते हैं, जबकि हकीकी मुसलमानों के तमाम फिरकों में ये बात अपनी नस्लों को हम सिखाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर दज्जाल के खात्मे के लिए होगा। तो अभी से कौन से झूठे नबी आने लगे, इसीलिए ये अपने झूठे नबी को मसीह मौऊद कहते हैं और जिस खत्म नबूवत की बात मुनकरीन और मुनाफिकीन करते हैं दरअसल वो झूठे उम्मती नबी की है, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि हकीकी खत्म नबूवत मदीने के वाली, दो जहां के दूल्हा, सरवरे कायनात, सब्ज गुंबद वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है। तो वो नौजवान जो इकरारुल हसन जैसी यहूदी और मुनकरीन खत्म नबूवत की तालीमात का शिकार हैं, वो होश के नाखुन लें कि मुनाफिकीन किस तरह दीन इस्लाम से खिलवाड़ करके आपको भटका रहे हैं। तो नाज़रीन, इकरारुल हसन अपने तमाम स्टिंग ऑपरेशंस में कैमरे सिर्फ डराने के लिए रखते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। अगर सहाफियों से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि इकरारुल हसन सहाफी नहीं बल्कि एक ब्लैकमेलर है। इसीलिए यहूदी हमारी नई नस्ल को वैलेंटाइन डे जैसी खुराफात में मुब्तला करके जना जैसे गुनाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। यहूदी मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी वाहियात की तरफ हमारी माओ बहनों को माइल करके हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें खोलो और दज्जाली और यहूदियों के फितने को समझो। मुनकरीन खत्म नबूवत दरअसल हमारे दरमियान वो खारजी हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया, क्योंकि खारजी सबसे बड़े गद्दार हैं और दज्जाल की आमद पर ये उसकी फौज में शामिल होंगे। हकीकत जानिए कि कलमा हक बुलंद करने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल ईमान के बाद सबसे बड़ी नेकी किसी की मुसीबत को दूर करना है, किसी दुखी दिल को जोड़ना है। और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों
को दम किया है। पूरी दुनिया में लातादाद लोगों को अल्लाह ताला ने हर किस्म के मर्ज से शिफा अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज एक ऐसा कलंदर मौजूद है जिसका शायद हम तवील अरसे से मुंतजिर थे। हमारे अमाल के नतीजे में नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें अल्लाह ताला ने अपना वली कामिल इनायत फरमाया है, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पासबान है, अकीदा खत्म नबूवत का सिपा सलार है, दुखी दिलों की फरियाद, दुखी दिलों का सहारा है। यहूदी हमारी नस्लों को बर्बाद करके दज्जाल की फौज में शामिल करना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में अकीदा खत्म नबूवत के सिपाहियों को जमा कर रहे हैं। ये वो इकदाम है जो कि यहूदियों से हजम नहीं हो रहा। प्री प्लान स्टिंग ऑपरेशन करने वाले इकरारुल हसन ने इस बार गलती से हकीकी पीर पर हाथ डाल दिया है। ये नहीं जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे गुलाम के पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक है, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का साया है, सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खास नजर इनायत है। इकरारुल हसन ने गद्दार, कूफी और यजीदी होने का पूरा सबूत दिया है। इकरारुल हसन से यह तवक्को भी पूरी की जा सकती है कि स्टिंग ऑपरेशन की आड़ में इन्होंने जिस को लूटा, जिस के पैसे खाए, अगर इन्हें किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया तो ये सीधा इल्जाम हक बादशाह सरकार पर लगा देंगे। जो कुछ इकरारुल हसन ने किया है वो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि एक प्री प्लान साजिश है। इकरारुल हसन अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जब तक खिदमत खल्क और खत्म नबूवत का पैगाम हक खतीब बादशाह सरकार नहीं छोड़ेंगे, इकरारुल हसन अपना फितना फैलाते रहेंगे, क्योंकि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने पूरी दुनिया में खत्म नबूवत सेंटर्स कायम करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल इसी इक़दाम से यहूदियों और मुनकरीन खत्म नबूवत को सबसे ज्यादा तकलीफ है। हमारे सर का ताज तमाम सैयदजादों से आज हमारी अपील है कि इकरारुल हसन से पूछिए जो झूठ का वावेला इन्होंने मचाया, क्या ये सैयदजादों को जेब देता है? खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और तहफ़्फ़ुज़ करना तो सैयदजादों की जिम्मेदारी है। क्या खत्म नबूवत की मुखालफत करना सैयदजादों का काम है या गद्दारों का? मेहमान नवाजी करना क्या सैयदजादों की शान नहीं? घर आए दुश्मन की भी इज्जत करना क्या सैयदजादों की शान नहीं? दुखी लोगों की मदद करना क्या सैयदजादों की शान नहीं? गिरे हुए को सहारा देना क्या सैयदजादों की शान नहीं? बीमारों को अल्लाह ताला से शिफा लेकर देना क्या सैयदजादों की शान नहीं? अपने प्यारे मदीने वाले की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में उनकी शान रिसालत और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों को पहुंचाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? सरवरे कायनात के आशिकों में इजाफा करना क्या सैयदजादों का काम नहीं? नौजवानों को वैलेंटाइन डे और हैप्पी न्यू ईयर जैसी यहूदी खुराफात से निकालना क्या सैयदजादों का काम नहीं? उम्मत मुस्लिमा को हविस, कीना, बुग़्ज़ और गुनाहों की दलदल से बचाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? पूरी दुनिया में खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना क्या सैयदजादों का काम नहीं? माँ बाप को ज़माना जाहिलियत में बाजारों में बेचा जाता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई। आज की नस्ल को यह समझाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? वालिदैन की अताअत नई नस्ल को सिखाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? किसी आम सी खबर पर तो काफिर भी लान तान नहीं करता। वलियों के मज़ारों को अड्डा कहना क्या सैयदजादों को जेब देता है? यतीमों को गले से लगाना क्या सैयदजादों की शान नहीं? बच्चों पर शफकत फरमाना क्या सैयदजादों की शान नहीं? रोते हुए लोगों के आंसू पहुँचना क्या सैयदजादों का काम नहीं? खत्म नबूवत सेंटर्स पूरी दुनिया में कायम करना क्या सैयदजादों का काम नहीं? जिन्नात और शयातीन की पकड़ से लोगों को छुड़ाना सैयदजादों का काम नहीं? इंसान को तकलीफें देने वाले शयातीन से लड़ना क्या सैयदजादों का काम नहीं? ये काम तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी ताला अन्हो की शान है, हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान है, हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो की शान है, शहंशाह विलायत हजरत अली रज़ी ताला अन्हो की शान है। और आज के दौर में ये तमाम काम इन तमाम आला हस्तियों का ये गुलाम कर रहा है, जिसे दुनिया सिपा सलारे अकीदाए ताजदारे खत्म नबूवत कलंदर दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम से जानती और मानती है, जिसने पिछले 25 बरसों से खिदमत खल्क में कोताही नहीं बरती, जिसका पैगाम है कि अकीदा खत्म नबूवत कामिल ईमान की बुनियाद है। अगर इस पर गुमान भी मुतज़लज़ल है तो ईमान ही नहीं। ये मकाम, ये इज्जत, ये वकार, ये रूहानियत की बादशाहत सब कुछ मदीने वाले आका की चौखट पर पड़ा हुआ है।
इसे लेने की अहमियत वो जिसे चाहे अता करें, और जब अता करने पर आए तो जात, रंग, नस्ल कुछ भी नहीं देखते, बस अता फरमा देते हैं। इसके लिए रगों में हलाली और वफादार खून होना जरूरी है। कहीं भी मिलावट हो तो ये अता नहीं हो सकती। यही अता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर मुबारक से हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नस्ल मुबारक के लिए मांगी। इसीलिए उनके बाद उनके साहबजादे कलंदर दौरान साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार उनके मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, और ये मिशन हमेशा लेकर ये नस्ल चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी इल्तिजा है सैयदजादों से, ये एक गहरी साजिश है। आज आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो हिस्सों में तकसीम करने की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ, इस अवाम के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, बीमारों के खिलाफ, बेसहारों के खिलाफ, शयातीन की नहूसत में फंसे बेचारे लोगों के खिलाफ, और सबसे ऊंची और आला नस्ल पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के खिलाफ। ये घनौनी साजिश है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदार उम्मत के खिलाफ, एक ऐसी जगह और एक ऐसी हस्ती के खिलाफ जिसे सैयदों का एहतराम करना उनके वालिद गरामी क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया और तरबियत दी, और उसी तरबियत की बदौलत आज ये मर्द कलंदर वो तमाम काम और जिम्मेदारियां निभा रहा है जो कि सैयदजादों को निभानी चाहिए। इकरारुल हसन आपको पता नहीं कि आपने रेटिंग, सस्ती शोहरत और पैसे के लिए क्या कुछ कर दिया। बीएसपी की टीम शायद ये वीडियो ना बनाती, लेकिन बात मुकम्मल होने के बाद, प्यार मोहब्बत से तमाम मामलात मुकम्मल होने के बाद, हर चीज का वादा करने के बाद इकरारुल हसन ने वापस जाकर अपनी साजिश को जारी रखा हुआ है, तो हमें मजबूरन ये वीडियो सबूत आपके सामने पेश करने पड़े। कोई बंदा भी, सरकार जी ने कहा कि आज विलादत हुसैन पाक है, किसी भी खादिम ने, किसी भी अकीदतमंद ने अगर कोई किसी किस्म की पोज, किसी किस्म की गुबार की, उसका ताल्लुक दरबार अली अब्दुल्लाह शरीफ से नहीं है। लेकिन शायद मुनकरीन और मुनाफिकीन खत्म नबूवत का माल खाने वाले, इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे मौलवी, झूठे मुफ्ती, झूठे आलिम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तमाम गद्दारों के चेहरे भी सामने आने थे। इसीलिए मज़ारों और आस्थानों से जब रूहानियत उठने लगी तो इसका फायदा मुनकरीन खत्म नबूवत ने भरपूर तरीके से उठाया। सच्चे लोग आज भी हक के साथ साबित कदम खड़े हैं। खत्म नबूवत के गद्दार चाहते हैं कि हक बादशाह सरकार हजारों और लाखों का मजमा न लगाए, लोगों की खिदमत ना करें, खत्म नबूवत की आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद ना करें, पूरी दुनिया में खत्म नबूवत सेंटर्स कायम ना करें। क्यों ना करें? आखिर क़यामत के दिन अपने नबी को मुंह नहीं दिखाना? कब्र में तीसरे सवाल पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा तो गद्दार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचान सकते। हक बादशाह सरकार के दम की मुखालफत करने वाले खुद यहाँ से दम करवा कर गए और यहाँ से शिफा और अमन मोहब्बत का पैगाम लेकर गए। हक बादशाह सरकार इसी तरह खिदमत खल्क और पासबानी खत्म नबूवत जारी रखेंगे और इस पर कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते। और याद रखें, हम न बाज आएंगे खत्म नबूवत की आवाज उठाने से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ताजदार खत्म नबूवत जिंदा।